So hello everyone, welcome back to my channel. So again, let's start with the third chapter of the Black Aeroplane. So again, a very crisp summary. Start हो रहा है क्या? The black aeroplane समझ में ही आ जा रहा है. It has to do something with the flight. Okay, so there is this pilot who's flying from Paris to England. So Paris is where he works. England is where his family is. ठीक है? And he is too eager to enjoy that English breakfast with his family. Now यहाँ पे it's not only about just having food. खाने के लिए वो इतना परेशान नहीं है. But it's just his family is also there. So he is too eager to meet them. Okay? Now when he is initiating his journey, जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहा है, सो देन द वेदर इज एब्सोल्युटली क्लियर. बिकॉज क्या होता है, अब आप जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको क्लाउडी वेदर नहीं चाहिए होता, यू वांट क्लियर वेदर. ठीक है, उस टाइम तक तो वेदर वॉज क्लियर एंड वेरी पीसफुल, एवरीथिंग वाज फाइन. एंड देन ही कुड सी द लाइट ऑल्सो, ही वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा कुछ टाइम में ही इज गोइंग टू रीच हिज कंट्री. बट ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंस, ही इनकाउंटर्स इज सामना होना. तो उसका सामना किस चीज़ से होता है? डार्क स्टॉर्म क्लाउड से. ओके, तो एक अचानक से आंधी तूफान जैसा हो जाता है, एंड ही कुड सी दिस मैसिव क्लाउड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. ओके, अब क्या होता है, ही हैज़ टू ऑप्शंस, आइदर ही इज गोइंग टू गो बैक और टू टेक द रिस्क. बट वो हो जाता है ना कि इतने करीब आने के बाद उसके बाद देन ही रियलाइज कि वापस जाना इज़ नॉट फीजिबल. तो ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. Okay, instead of turning back to Paris, the pilot decides to take a risk and fly through the storm. And then all of a sudden, what happens is, as soon as he's just entering the storm, he realizes that everything is pitch black. तो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है. All his instrument, okay, the compass, the and whatever instrument that he was having that would help उसको जो मदद करेगा आगे बढ़ने में, they were not working. वो लोग functional ही नहीं थे उस टाइम पे. And he could not see also anything. He tried to connect to those, there's the control room वगैरह होता है, so that anybody would help, but वो भी नहीं possible था. All of a sudden what happens is he sees a mysterious black aeroplane. Okay, out of nowhere एक aeroplane उसको दिखता है. Okay, and he saw that the other pilot, he's gesturing. Gesture करना मतलब क्या? Action दिखाना. तो हाथ से वो action दे रहा है that you follow me, I'm going to guide you. Now उसके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, उसको खुद तो कुछ दिख नहीं रहा. तो he realized that maybe this person is going to help him, so he just blindly followed him. The black aeroplane leads the pilot safely out of the storm towards an airport runway. तो बीच में क्या हो जाता है, तो he was following that black aeroplane for 30 minutes. आधा घंटा तक when he was following him, then again एक और प्रॉब्लम हो जाता है. what did he realize? that he was carrying two fuel tanks. तो दो पेट्रोल टैंक थे उसके पास, डीजल पेट्रोल whatever फ्यूल टैंक थे, जिसमें one he had already used and he was using his second tank. Okay, and he realized that he just has just 10 minutes or so, ऐसा कुछ टाइम ही उसके हाथ में. अगर वो 10 मिनट में लैंड नहीं करता है, then he would run out of fuel. run out of fuel is उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो अगेन वो चांसेस है एक्सीडेंट होने का. नाउ व्हाट हैज़ हैपन, ऑल ऑफ अ सडन व्हेन ही वाज थिंकिंग ऑफ दिस कि अभी लगता है कि अभी ख़त्म होने वाला है, आई एम अबाउट टू डाई, ऑल ऑफ अ सडन व्हाट डज ही कुड सी अ रनवे राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. Okay, and he landed safely out of the storm. And as soon as he is landing safely, there's this line, and this question is also repeated: ki why was he not sorry while moving away from that, like runway? तो why would he be sorry? उसकी जान बच गई है, तो वो बस भागा भागा वहाँ से निकल रहा था कि आई एम सेफली, आई हैव लैंडेड. ठीक है, so he came out and then he wanted to look for that black aeroplane, that pilot, because he wanted to thank him. But he could not see any aeroplane there. उसको कोई aeroplane नहीं दिखा. Okay, now what did he do? The control tower, he asked the control tower person that like, where is that black aeroplane? Where did it go? Which was right in front of him. The control tower staff informed him that no other plane was flying in the storm at that time, leaving the pilot puzzled. But the woman that was there, so she was quite puzzled कि आप किस aeroplane की बात कर रहे हो? Because from here we could see that only your aeroplane was there on sky today. ओके, सो बेसिकली थीम क्या है स्टोरी का? तो देखोगे एक मिस्ट्री है. वाई मिस्ट्री? और आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से एक ब्लैक एरोप्लेन आया, एक पायलट है जिसको हेल्प कर गया. करेज है, बिकॉज इट इज़ द करेज दैट लाइक कंपेल्ड हिम टू मूव फॉरवर्ड. एंड इट इज़ दिस डिवाइन इंटरवेंशन. डिवाइन इज समथिंग लाइक स्पिरिचुअल. तो इंटरवीन करना इज इंट्रूड करना, घुसना. तो ऐसा कुछ हुआ कि मतलब कोई परमात्मा ही है हु केम एंड ही हेल्प्ड दिस पर्सन. ये सब कुछ चीज़ें हैं. Okay, it leaves reader with an intriguing sense of the unknown, encouraging them to believe in miracles and unseen forces. Okay, so जो चीज़ों पे हम लोग हमारा होता है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि जो चीज़ दिख रहा है बस वी
are going to trust that only. But कई बार ऐसा हो जाता है, तो there are certain things that happens to us which is beyond our imagination, which is beyond any explanation, जिसका कोई explanation ना हो. Okay, now let's quickly discuss the PYQs and let's see if you are able to answer them or not. So why did the pilot call the Paris control room? Because he was stuck there and he was not able to retrieve his track. What instruction did he receive? He did not receive any instruction. Okay, because it was not working only. What made the pilot decide to risk flying through the storm instead of going back to the Paris? Because he was too intrigued to meet his family and he had just seen the light of the city and he did not want to, like go back to Paris after traveling such a distance. So he thought of taking the risk. Okay, describe the appearance, refer to the text for that. Okay, and you'll get the answer. How did the mysterious pilot in the black aeroplane help the narrator? So that I've mentioned in the summary also, that he gestured that you follow me, and he just blindly followed wherever that black aeroplane was taking him. Okay. Why was the pilot surprised after landing at the airport? Because he got to know that no other plane was there. Okay. लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या है? रोल ऑफ ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टोरी, व्हाट डज इट सिम्बलाइज? तो रोल क्या है, उसको हेल्प किया, और सिम्बलाइज क्या करता है? सी थीम एंड मैसेज में ही जो मैंने लिखा है. ओके, इंट्रीगिंग सेंस ऑफ अननोन, इनकरेजिंग देम टू बिलीव इन मिरेकल्स एंड अनसीन फोर्सेस. ओके, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पायलट ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड हाउ ही ओवरकेम इट. तो एक आप डिटेल समरी करोगे या इफ यू रीड द चैप्टर वंस यू विल बी एबल टू आंसर दिस. Story ends on a mysterious note. What according to you could be the possible explanation? So that is totally up to you. कई सारे बुक्स में मैंने देखा है कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन था, कुछ तो था जो हेल्प किया, सब सुपरफिशियल एनर्जी. किसी किसी बुक में आई हैव ऑल्सो रेड कि इट वॉज हिज इनर कॉन्शियस, कोई खुद का ही उसका कॉन्शियस था जो वो ही स्टार्टेड टू हैलुसिनेट, और उसको लग रहा था कि कोई और हेल्प कर रहा है बट कोई और नहीं हेल्प कर रहा था, इट वॉज ही. तो कई बार होता है ना, हमारी खुद की एनर्जी होती है, हमारे खुद के विजन होते हैं अबाउट अस दैट कंपेल्स अस टू लाइक वर्क हार्ड, और कि है कि हाँ कुछ तो कर लेंगे हम लोग लाइफ में. ओके, सो मे बी दैट वॉज देयर. How does the chapter highlight the theme of faith and trust in challenging situations? So faith in yourself also. अच्छा, यहाँ पे दो तरह का होगा, faith and trust. खुद के ऊपर भी है कि हाँ ठीक है, तभी तो he had the faith in him, then only he took the part of entering in the storm. Okay, and second होगा आपका faith and trust, trusting others also. So black aeroplane है, he does not know anything about that person, but still उसको भरोसा था कि नहीं चलो पार लगा देगा, तो he took his help. Value-based pilot trusted the guidance of the mysterious aeroplane. What lesson can we learn about trust and belief in difficult times from the story? So trust and belief, I feel, is something that keeps us going. I keep saying कि without trust, the world is going to collapse. I can only drive on a road trusting the driver in front of me कि वो गाड़ी आकर के अपना गाड़ी ठोकेगा नहीं मेरी गाड़ी में, right? So ये mutual trust होता ही है, इसके ऊपर दुनिया चलती है, right? So this is what is seen in this story also. चलो, थीम क्या क्या है? मिस्ट्री एंड अननोन का थीम है. ओके, यू जस्ट pause the video and you can read or take screenshot or do whatever you feel like, but I'll just be very short with the explanation. Okay, so mystery and unknown है. His story is revolving around mysterious black aeroplane. ओके, वो क्वेश्चन राइज कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं किस चीज़ का, सुपर नेचुरल फोर्सेज है, अनएक्सप्लेन फिनोमेना, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कैन नॉट एक्सप्लेन. कई बार ऐसा होता है ना कि आपने देखा कोई एक इंसान है, वो हेल्प किया और अचानक से वो गायब हो जाता है इन योर लाइफ. ओके, सो यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि वॉट एग्जैक्टली वॉज दैट. ओके, करेज एंड रिस्क टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. पायलट्स डिसीजन टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म्स हाईलाइट हिज करेज एंड डिटर्मिनेशन. फेथ एंड होप है. डिवाइन इंटरवेंशन और गार्जियन एंजल. Okay, see, appearance of black aeroplane can be interpreted as divine intervention or the presence of a guardian angel. The story suggests that unseen forces might come to one's aid in times of need. Human vulnerability and nature's power. ये तुम्हारा आपका हो जाता है. जैसे एक चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड, तो उसमें क्या था कि नेचर के आगे हमारा कुछ बस नहीं चलता, राइट? जो बारिश उसके फसल को अच्छा कर रही थी, दैट वेन टर्न इन टू हेल्सटॉर्म, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. सेम थिंग इज हियर. तो ही हैड प्लान समथिंग अबाउट हिज विजिट टू इंग्लैंड, बट स्टॉर्म में जब वो फंसता है तो ही वॉज हेल्पलेस, ही वॉज ऑन अ वर्ज टू लूजिंग हिज लाइफ. अंडरस्टूड? तो ये होता है नेचर का पावर, एंड उसमें हाउ वी वल्नरेबल वी बिकम. ओके, ट्रस्ट एंड डिपेंडेंस.
human desire for safety and comfort, persistence and resilience. Why am I like speaking about so many themes? Because आजकल जिस तरह से interchangeable questions आ रहा है, तो you will realize कि कैसे एक दूसरे के साथ, अब से करेज है या ट्रस्टिंग अदर ह्यूमंस है, तो ये नेल्सन मंडेला में भी जा सकता है. ओके, नेचर का जैसे है तो वो डस्ट ऑफ स्नो में भी जा सकता है, लेंचो में भी जा सकता है, परसिस्टेंट एंड रेजिलियंस है, ये आपका मंडेला में भी जा सकता है. तो इसीलिए आई मेक श्योर कि हर थीम को आप समझ लो कि इफ़ सच क्वेश्चन कम्स तो यू विल बी एबल टू आंसर बोथ. ठीक है. सी अगैन पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है. ब्लैक एरोप्लेन ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो करेज के बारे में बात हो रही है. ओके, आई हैव एक्सप्लेन हाउ ब्लैक एरोप्लेन में करेज किस तरह से यूज़ हो रहा है. शोज इमेंस करेज बाय रिस्किंग हिज लाइफ. एंड फर्स्ट फ्लाइट में भी कैसे करेज यूज़ हो रहा है. ओके, पहले वो हेजिटेंट था दैट बर्ड, बट इट वॉज हिज करेज ओनली कि नो नो आई कैन डू इट. ओके, दैट इज गिविंग देम the courage to move ahead and overcome their fears. Faith and unknown, so they don't know what is in store for them. See, the black aeroplane, the narrator trusts the mysterious black aeroplane to guide him and compared this faith with optimism shown by Lencho. So even Lencho knows, no, God is there to help me. Likewise, this black aeroplane had this pilot had faith on that black aeroplane without even seeing that pilot for real. ह्यूमन कनेक्शन विथ नेचर, से नेचर का दोनों का है. लाइक आई सेड, लेटर टू गॉड भी आप इसमें डाल सकते हो. आप नेचर में अगर बात हो तो डस्ट ऑफ स्नो भी आप डाल सकते हो. योर चॉइस. ओके, कंपेयर द पायलट स्ट्रगल विद द स्टॉर्म इन द ब्लैक एरोप्लेन एंड टाइगर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन अ टाइगर इन द जू. किस तरह से बोथ द कैरेक्टर्स कन्फ्रंट फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल. तो ऐसे फोर्सेस है विच इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, स्टिल दे आर कन्फ्रंटिंग, दे आर फेसिंग देम एंड देयर स्ट्रगल, इसके बारे में. ठीक है. सी, ब्लैक एरोप्लेन, द स्टॉर्म सिम्बलाइजेज नेचर्स अनकंट्रोलेबल पावर ओवर ह्यूमंस एंड टाइगर एंड द जू का था रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डोमिनेंस ओवर नेचर. तो उसी का जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मुझसे. ओके, सर्वाइवल एंड परसिवरेंस में थीम ऑफ सर्वाइवल इन ब्लैक एरोप्लेन एंड नेल्सन मंडेला. रिमेंबर, ऐसे रेजिलियंस एंड परसिवरेंस, परसिस्टेंस, तो कैसे है कि मुश्किल है बट स्टिल वी आर गोइंग टू फाइट. ओके. Then again, Black Aeroplane, the narrator relies on external help, while in his first flight, the young seagull overcomes his fear by himself. How does these stories reflect different approach to overcoming challenges? So अलग अलग सिचुएशन में हमारा कैसा रिएक्शन होता है प्रॉब्लम्स को फेस करने का. आपका ये आ सकता है इन वल्ली ऑल्सो. ठीक है, कि वो कितना सारा प्रॉब्लम्स वो झेल रही थी बट देन स्टिल शी ओवरकेम इट. ओके, तो अगर फर्स्ट फ्लाइट को, ब्लैक एरोप्लेन को वली के साथ किया जाएगा तो यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इस बेसिस पे ये आंसर लिखना है हम लोग को. लाइफ लेसन्स दैट वी आर गेटिंग, लेसन्स फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस. सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ से डस्ट ऑफ स्नो एंड ब्लैक एरोप्लेन. तो ब्लैक एरोप्लेन भी स्टार्ट होता है ना वेरी स्मूथ टाइम एंड बहुत ख़राब एंडिंग की तरफ मुड़ते मुड़ते थिंग्स टर्न आउट बेटर. सेम थिंग इज विद डस्ट ऑफ स्नो, कि वो दिन आधा दिन ख़राब हुआ बट इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर एटीट्यूड. इट्स आवर एटीट्यूड विच इज़ चेंजिंग द इंटायर सिनेरियो. अंडरस्टूड. लास्ट इज सिम्बॉलिज्म एंड थीम. सो क्या क्या सिम्बल्स यूज़ हुआ है. ब्लैक एरोप्लेन में स्टॉर्म इज़ यूज्ड एज ह्यूमन स्ट्रगल्स. ओके, एंड फायर एंड आइस का सिम्बॉलिज्म है. तो फायर एंड आइस का भी तो कंप्लीट नोट्स आपके पास है ही, एक्सप्लेनेशन भी है सिम्बल का. एंड इसमें क्या सिम्बल यूज़ हुआ, स्टॉर्म. स्टॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन स्ट्रगल को. Okay, so with this we come to the end of this chapter. We have discussed the summary, we have discussed the themes and all sorts of possible questions that can come. I believe, I really hope, I guess इससे अलग तो कुछ आना है नहीं. तो please refer to these pointers and try to analyze. आप जितना elaborate करोगे it's totally up to you, but framework आपको idea मिल जाएगा कि अच्छा इसी point पे work करना है. Okay, so with this I end today's lecture. Please do comment down below any other point that you want me to add. Okay, thank you so much.